Yes, sir, please. Okay. My voice is audible to all. Thank you, Dr. Anupma. As she introduced myself, I'm basically data scientist, and I was I was former head as well as a dean research of the University of Lucknow. My email ID is this one, and my contact number is there. The most efficient, the most efficient way to contact me, and we have mentioned data analytics course. DACG.in. अभी इसको at the end I will show you. Are you comfortable in English or bilingual? I will try to be bilingual. Basically, this website we have developed in 2017. There are 21 professors of different disciplines. Some of from this department, some from BU, some from EAMU, Pune University, Chennai University, BBU, etc. What we are doing here, that if you are facing any problem regarding your data analysis, you are not able to understand which tool of statistics to use. In that situation, you go to the contact us of this website. You simply mention your email ID, write down a problem which you are facing, and if your data is not confidential, you can attach the 5 MB file. Whatever, if you will send this within 10 days, you will get a free of cost solution. Which tool is to be used for the analysis? And one more thing is that in the front page or the home page of this website, स्टैटिस्टिक्स की कोई भी ब्रांच या कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसको आई हैव नॉट इट डिस्क्राइब. There is a heading statistics at a glance. I will show you little bit at the end. And then you click, there are various topics. Suppose you want to know what is p-value, or what is mean, what is median, or what is correlation, or what is ANOVA. Whatever you want, you just click it, and you will get the literature there. And if you are not able to understand by literature, then I have uploaded a certain short video related with that. So there is no need to consult any book or to do any suggestion. So here, this will be a very fruitful website, and I am a group leader of this data analytics core group all across the India. And you will be surprised to know that we have resolved more than 40,000 problems all across the globe. मेडिकल डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं जो मेडिकल स्टडीशियंस के हैं, इकोनॉमेटिक्स के लोग हैं, इकोनॉमिक्स वाले लोग हैं. आप इकोनॉमिक्स फील्ड के हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने सर्वे कर लिया, डेटा कलेक्ट हो गया, कौन सा टूल स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है. So you can share your data if is not confidential, then we will our server domain will send to the expert, and thereafter within 10 days that expert will give the comment that this tool is the best. That's why this is it. I have delivered more than 4,000 lectures on these topics, right to information act. I am management training in the UP government communication and statistics. SPSS software, this workshop is designed for the advanced topics. Therefore, Python, MCMC means Monte Carlo Markov chain, statistical computing, machine learning, and present I am data consultant in UP government private sector and police. How I am delivering lectures to IPS officers. You might have studied the definition of statistics as the collection, जो आप परिभाषा पढ़ी होगी आपने या बताई गई है या बुक्स में,
collection, analysis, and interpretation of data and numerical observation is known as statistics. But this scene has already been changed. This is the definition that what statistics is a science of getting informed decision everywhere, either in marketing research or in government. Every policy decisions is being taken on facts or after analyzing the facts. Therefore, the definition of basic statistics has been changed by me, and it is a tool for creating new understanding from a set of. So basically, we should know the data, then we apply statistics, and then we get a statement. What are data? Data are the facts, especially available, collected together. So I'm not going into the basic detail because we have to switch over in the advanced technology of the various tools in SPSS software. I'm not going into. This is the skeleton of statistics, taxonomy of statistics. जैसे हम लोग बनाते हैं मेडिकल में. This is the basically you might have two branches: descriptive methods, inferential methods. In descriptive methods, when we conducted the last year, last 6 months back, then we have studied the univariate and study. But this program is focused for bivariate and multivariate. So red parenthesis on this taxonomy structure हम लोगों ने कंप्लीट किया है और वेरियस टॉपिक्स study under this t-test, ANOVA. You have already done in the previous and you already know. This is the very important issue for the normal distributions. Many statistical techniques like T, analysis of variance, etc., assume the data fits a normal distribution. Whenever you collect the data or you get a survey and then obtain the collect informations and you apply directly. आप लोग आते हो हमारे पास कि सर इसमें टी टेस्ट लगा दीजिए या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लगा दीजिए या रिग्रेशन लगा दीजिए, but you don't know the concept of the normality. So therefore there is very important issue that you first check whether your data is normal or not. If your data is normal, only then you can switch over the like regression analysis, Manitoba, ANOVA, or t-test or F-test like this. So therefore, this is how can we tell if our data fits in this shape? This is the shape of the normal distribution. Same is the situation in the case of multivariate. It is just like a in the previous slide, it is just like a bell-shaped curve. Whereas in the multivariate data set, we have this type of canopy. Whenever you are having number of variables, then you must have such type of data, and you should know whether your data is normal or not. First of all, before starting with this is the very important slide which indicates the outliers. Most of the times, आप लोग जब मीन निकालते हो या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो, whatever you are doing t-test or analysis of variance, whatever you are doing, उसमें होता क्या, जैसे अभी इस क्लास की एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं. On an average, whatever I am observing, there is a concept. Average height of the student studying here is 5 feet 4 inch लग रहा है. मान लीजिए आप ही की तरह कोई बोनाफाइड है पार्टिसिपेंट है जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसकी हाइट अमिताभ बच्चन से he is also sitting here. And whenever मुझसे कहा या इनसे मैंने कहा कि आप 10 पार्टिसिपेंट्स का सैंपल लेके की एवरेज हाइट का, इन केस जो भी इन्होंने सैम्पलिंग टेक्निक्स लगाई उसमें वो अमिताभ बच्चन से ऊपर हाइट 1 फीट हाइट वाला बच्चा ही सेलेक्ट किया. तो 5 फीट 4 की जगह एवरेज हाइट क्या हो, 5 फीट ऊपर चली जाएगी. तो आप टोटल ग्रुप की हाइट तो 5'4" है, लेकिन बिकॉज ऑफ ओनली वन ऑब्जर्वेशन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज नोन एज आउटलायर. और अक्सर आप लोग भी जब रिसर्च करते हैं, आप अपने सुपरवाइजर के पास जाते हैं तो आप ये कहते हो कि
सर इस ऑब्जर्वेशन की वजह से या इस केस की वजह से हमारी एनालिसिस गलत हो, तो हम लोग क्या करते हैं, आपका सुपरवाइजर ये कह देता है कि इसको आप हटा दो, इसकी जगह कोई दूसरा फॉर्म भर लो जो मिलता जुलता, यही पे स्टडीशियन की ओपिनियन है। वी शुड इन्वॉल्व दिस। अभी बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम शोइंग दिस पिक्चर, नाउ यू सी दैट व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम जयपुर टू उदयपुर, तो थोड़ा पिक्चर लेने का शौक है, तो ये ग्रुप का मैंने, you see that all are the sheep, but at the center there is a one goat. So because of this goat ऑब्जर्वेशन हमको देखने में तो लग रहा है, अभी एक पीएचडी मैंने 2-3 साल पहले पढ़ाई की है इसी डिपार्टमेंट में, कि आप अभी यहाँ गेट नंबर 4 पर आए होंगे, बनियान का ट्री है, बरगद का पेड़, तो मैंने अपने स्टूडेंट से कहा कि तुम 50 लीव्स जो है, जो बरगद के पेड़ की जमीन पे गिर जाती हैं, उनको आप ले आओ कलेक्ट करके, तो वो गई अपना, और शी कलेक्टेड द 50 लीव्स, पड़ी हुई थी बड़े, और वो ले आई। उसके बाद इसी यहीं पर हमने अपने केबिन में बैठा के उसका तमाम डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, स्क्रू कैसे, ये सब मेजर करा के एक्सेल सीट पर या रजिस्टर में रिकॉर्ड। अब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, मैं कहा क्या इस तरीके का कोई और ट्री है जिसकी लीव्स इसी तरीके से? उन्होंने कहा यस सर। हमने कहा, उसने कहा पीपल का। हमने कहा कहीं देखो यूनिवर्सिटी में कहीं पीपल का पेड़ लगाओ, उसकी भी लीव्स बरगद की लीव्स की पुनः होती है, उनके लिए वो 5 या 6 लीव्स जो है पीपल के लिए, और वो यहाँ पर रख दिया, मतलब उसी 55 या 50 के सारे मेजरमेंट जो सेपल से उसका पेटल क्या था, वो सारे डिपार्टमेंट वैसे ही हमने पीपल का भी 5 और उसको सब मिक्स कर दिया, 5-6 पत्तियां पीपल की, बाकी रेस्ट 56 पत्तियां पर। हाँ, तो उससे दूसरे दिन हमने कहा वो जल्दी, क्लोरोफिल बहुत ज्यादा होता है, सूखती है नहीं। नेक्स्ट डे जब वो आई, हमने कहा इसमें से पीपल की जो आउटलायर दिख रही है वो भी ऐसी प्रॉब्लम है, उसको जरूर से देखकर निकाल। हमने कहा आप इसको डस्टबिन में डाल। नाउ आई हैव ओनली ऑब्जर्वेशंस 1 से लेकर 60 तक। अब मैंने उससे ये रिसर्च कराई कि वो 5 केसेस या 6 केसेस बताओ कि इन ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ स्टडिंग द आउटलायर्स। तो सोशल साइंस में या फंडामेंटल साइंस की जो रिसर्च होती है, उसमें इस तरीके के जब आउटलायर्स आते हैं, तो हम लोग, हमारे जो सुपरवाइजर्स होते हैं या जो हमारे प्रोजेक्ट सुपरवाइजर होते हैं, वो कहते हैं इसको ऐसा में नहीं, हमें उसको अपने साथ रखना है और स्टडी करनी। देयर आर 2 मेथड, वन इज स्वैम्पिंग मेथड, वन इज, जैसे आप लोग भी स्टूडेंट हो या फैकल्टीज भी होगे, जब हम लोग क्लास पढ़ाते हैं तो हम ब्लैक बोर्ड में इस तरीके से लिख रहे होते हैं, पीछे वॉच करते हैं क्या हुआ, 2 स्टूडेंट्स हमारे और शिफ्ट कर रहे हैं आपस में विस्परिंग कर, तो हम किन लोग क्या करते हैं, मैं करते हैं स्टैंड अप, तो हम उसको बाहर भेज देते हैं। तो जब वो स्टूडेंट बाहर जा रहा होता है, वो क्या करता है, उसको तो मैंने बाहर कर दिया, मैं इस तरीके से पढ़ाने लगा, फिर जब वो बाहर जा रहा है तो दूसरे वाले को आंख मारते थे कि मैं तो जा रहा हूँ, अब तुम न्यूसेंस क्रिएट। फिर वो दूसरा क्रिएट करने लगता है, फिर उसको जब गेट आउट करते हैं तो फिर तीसरा आ जाता है। तो इस तरीके से आई वॉज एनालाइजिंग द डेटा बॉक्स प्लॉट का, यूपी पुलिस का डेटा मैं दिखाऊंगा अभी, उसी पे थोड़ा मैंने आप एग्जाम करके पूरे यूपी को 8 जोन्स में डिवाइड कर रखा है। देयर आर 18 रेंजेस and 18 ranges के अंदर there are 75 districts and 75 districts में 1536 पुलिस स्टेशन, तो हमको सीसीटीएनएस वाले या डायल 100 का
डेटा हमें आप देते हैं, हम उनको उसको एनालाइज करते हैं और उससे पुलिस ऑफिसर या डीजीपी जो है वो ये उसको बताया जाता है या उसको अपनी स्टैटिस्टिकल टूल से कि यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का पुलिस का परफॉर्मेंस बहुत वीक है, यहाँ का परफॉर्मेंस बहुत बुरी अच्छा है, या यहाँ क्राइम रेट इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा है, इस डिस्ट्रिक्ट में कम है, तो उसके हिसाब से वो अपनी बहुत चीज बनाती है। I was delivering lecture 2 years back. One DGP was there, OP Singh was sitting there. तो उसने कहा मेरा पुलिस का डेटा तो फाउंडेशन नॉर्मल है। मैंने कहा पुलिस और पुलिस का डेटा नॉर्मल, इट इज नॉट। तो आई उसी डेटा का तुरंत एसपीएसएस में बॉक्स प्लॉट बना के दिखाया तो पता चला। तो बॉक्स प्लॉट अब दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट भाग गया फॉर एग्जाम्पल। उस डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने कहा अच्छा इसको हटा दीजिए, 74 रह जाएगा, 74 का प्लॉट। हमने 74 का प्लॉट किया तो पता चला अब दूसरा निकल कर आ गया, रायबरेली आ गया, रायबरेली को आप उसने निकाल दीजिए तो बेबी पाटन आ गया। लाइक दिस, इस तरीके से यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एक एक वाक्य हम निकालते गए और उस ओपी सिंह का चेहरा ऐसे होता गया नीचे जितना मैं निकालू, और यू विल बी सरप्राइज कि ओनली 37 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 75 जो है वो नॉर्मल बिहेवियर। अब आप ये सोचिए हम लोग भी जो डेटा आप भी कलेक्ट करते हो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या। तो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आप लोग को, हो सकता है यहाँ पर एक जगह है मोहनलालगंज, पीजीआई के आगे। वहां पर एक मदर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ को, मतलब एक सास अपनी बहू को सवेरे 10 बजे चारपाई में बांधकर पेट्रोल डालने जाके आग लगाने जा रही, पेट्रोल मिट्टी के। भाई दी वे जो उसके डॉटर इन लॉ के हाथ में मोबाइल था, उसने 100 डायल कर दिया तो पुलिस आ गई। अब वो बचा लिया उस लेडी, और बुढ़िया जो थी सास उसको डांटा वाटा को, वह ऐसा नहीं करना, तुम्हें ऐसा बना 302 का मुकदमा हो जाएगा, फलाना ठिकाना। 4 घंटे पुलिस के ऑफिसर्स वहां बैठे रहे और वो उस बहू को भी कहा कि भाई ऐसे तुम गलत काम, वाट जो भी कारण थे वो दोनों के भी। नाउ यू सी नोटिस, नो एफआईआर इज लॉस्ट, एफआईआर का काउंट नहीं आएगा। तो लेकिन पुलिस की पेट्रोलिंग तो हुई, पुलिस के ऑफिसर्स का इंगेजमेंट हुआ, पुलिस का डीजल लगा। तो दिस इज द सिचुएशन दैट आउटलायर इज ऑलवेज देयर। सिमिलरली द बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग बताते हैं, हमारे बगल का टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये लोग जानते हैं, हम सबसे ज्यादा इस तरह की सिचुएशंस आती हैं जो रेड पोर्शन है, ऑयल एक्सप्लोरिंग। स्टैटिस्टिक्स में आउटलायर की जो स्टडीज है, वहां पर जो डिगअप करते हैं ना जमीन के अंदर, ये यहाँ उत्तर प्रदेश में या लखनऊ के अंदर पेट्रोल कंपनी ओएनजीसी जो है क्यों नहीं हिट कर रही है। जस्ट इमेजिन व्हाई दे आर गोइंग टू शिवसागर एट आसाम और देहरादून। उनको कैसे पता चल जाता है कि इतने 5000 मीटर के नीचे पेट्रोल निकलेगा या डीजल या ऑक्टेन नंबर निकलेगा। So that is the situation that we find the outlier. So therefore, जो statistics के स्टूडेंट्स हैं, there is a one book of Hampton or Huber statistics. तो एक तो वो मैंने बताया एग्जाम्पल क्लासरूम में कि लड़का एक कर रहा है तो एक डिस्ट्रिक्ट हटा तो दूसरा आउटलायर आ गया, दूसरा आउटलायर हटा तो तीसरा, that is called sampling method. One is another method that is called masking method. जैसे 5/2 एवरेज का है, तो अमिताभ बच्चन से जो क्लासरूम में बैठा हुआ है, पीछे बेंच पे बैठा हुआ है, उसको इस तरीके से मॉस्क है, तो जब वो लास्ट बेंच पे बैठा होगा उसकी हाइट हमको कम है। तो ऐसी सिचुएशंस भी हमारे आ जाती हैं। तो देयरफॉर व्हेनेवर यू आर कलेक्टिंग डेटा इन योर सर्वे, यूपी गवर्नमेंट में तमाम सर्वे होते रहते हैं, या आप अपने सोशल रिसर्च में करते हैं या फंडामेंटल रिसर्च में करते हैं, बिफोर प्रोसीडिंग द actual data analysis, you must see whether the outliers are present.
but generally outliers निकलते हैं। This is the situation. योर कोई भी सॉफ्टवेयर चाहे आप एसपीएसएस यूज करें या आर लें या पाइथन लें, इन स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट में जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि आपका डेटा आपका इनपुट है, या तो यूनिवेरिएट होगा या मल्टीवेरिएट होगा। यूनिवेरिएट की स्टडीज में हम दोनों ही सिचुएशन में ग्राफ देखेंगे, यूज कल प्लॉट जैसे अभी वो पिक्चर बनाई थी, मल्टीवेरिएट में भी देखेंगे। If there is a outliers, if they are not, so there is a GRUPS criteria to identify the outliers. तो वोट जो हमें दिखाई दे रही थी स्टैटिस्टिक में जो आउटलायर आता है, GRUPS का क्राइटेरिया है, इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। और if it is not there, तो we should use the robust procedure for the distance measures. For example, the aerial distance between Delhi to Lucknow and Lucknow to Delhi, जो आप इंडिगो की फ्लाइट से लखनऊ से दिल्ली जाए तो हो सकता है 55 मिनट में जाए, और उधर से जब आए तो हो सकता है 45 मिनट। एक ही प्लेन से गए, एक ही कंपनी की एयरलाइन से गए, लेकिन डिस्टेंस जल्दी कवर अप कर लिया। उसका रीजन यही है कि देयर इज ए सम रोबस्ट प्रोसीजर और डिस्टेंस मेजर्स, यूक्लिडियन डिस्टेंसेस का मेजर्स और मालऑब्वियस डिस्टेंस का मेजर्स आते हैं। तो देयरफॉर if they are present, yes, then able to identify the causes of outliers by swamping or Gaussian method, and if they are, then you remove it after detecting declared outliers and use the remaining data. This is the situation, and this is the situation of the box plot in the case of univariate, जिसको हम लोग statistics वाले use करते हैं। You are just observing the outliers, ये दो dots यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक बार डेटा बनाए तो दिस इज द ऑल स्टडी, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल। यूनिवेरिएट या प्रीवियस जो एफडीपी आप लोगों ने अटेंड किया होगा उसमें आते हैं इस तरीके से। नाउ रोल ऑफ नॉर्मलिटी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू व्हेनेवर वी आर एनालाइजिंग, वी शुड चेक। और यही गलती हम लोग करते हैं कि हम सीधे सीधे डेटा हमने गैदर किया, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू पे ले आए, उसकी नॉर्मलिटी नीचे। मैनी स्टैटिस्टिकल मेथड जो रिक्वायर करते हैं, रिक्वायर न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, वी आर वर्किंग विद द approximately normal distributions. This is the situation. If we are having zero mean, 1 minus 1 के बीच में स्टैंडर्ड डेविएशन पर है तो 68% डेटा इज नॉर्मल। If it is from -2 to 2, then 95% data is normal, and -3 to +3, then 99.7% data is. This is the real scene. हिंदुस्तान में इतने डिसिप्लिन हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवेज का डेटा है, हेल्थ केयर का डेटा है, एजुकेशन का डेटा है, यूपी गवर्नमेंट इतना है, या डिफरेंट स्टेट्स इतने सर्वे करती है। डू यू नो दैट which data is exactly normal? लोग भी तमाम डिसिप्लिन के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, मेडिकल का डेटा है, हेल्थ केयर सेक्टर का डेटा है। आप गवर्नमेंट डिफरेंट 29 स्टेट्स है, और स्टैंडर्डाइज जो 99.7% डेटा आपका एग्जैक्टली नॉर्मल, लाइक वेल सेट का। कोई जानते हैं इकोनॉमिक्स का डेटा, बैंकिंग सेक्टर का डेटा, रेवेन्यूज का डेटा, इंडियन रेलवेज का डेटा, वन डेटा इज नॉर्मल इन आवर कंट्री। आईएसओ लोगों ने नाम सुना होगा, या हम लोग जब परचेज करने जाते हैं तो नहीं कहते हैं कुकर या फ्रिज ISI मार्का या ISO 2005 या अब तो खैर 2015 ISO स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्रेशर कुकर या फ्रिज या व्हाट वी आर गोइंग टू परचेज इन द मार्केट, वी सी when you know which data is not exactly normal, there is only one data in our मालूम है? मुंबई डब्बा वाला नाम सुना है? मुंबई शहर में 11:45 10:45 पे 60 लाख लोगों को टिफिन पहुंचाने का काम जो लोग करते हैं, वो आपने आप
इसके बाद गूगल में सर्च करिएगा, उनके ऊपर मूवीज बन गया है। अभी अक्टूबर में वहां पर गणेश उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है, उसमें लोग मैनेज करते हैं। और करीब 7 से 10 लाख लोग हैं, तो मुंबई शहर में 60 लाख लोगों को 11:45 पे टिफिन पहुंचाने का काम पिछले वो लोग गरीब बच्चियों की सभी भी हैं, उनके ऊपर बहुत मूवीज भी बने। और वो कौन लोग हैं? वो हमारे आपकी तरह पढ़े लिखे नहीं, वो कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं जानते, वो सिर्फ अंगूठा छाप नंगे पैर शहर सिर में लंबा डिब्बा आप देखिएगा मुंबई की लोकल में रखकर पहुंचाने उनका डेटा आई एनालाइज्ड विच इज एग्जैक्टली नॉट जो हमारा 99.7 पिछले 70 वर्ष में सिर्फ 4 बार उनसे गलती हुई है। और वो गलती भी ऐसी नहीं गलती हुई, इस पर एक का टिफिन ऑफिसर मिस्टर बी के पास पहुंच गया, वेजिटेरियन ही टिफिन था, लेकिन अंतर इतना हो गया था, कंप्लेन आई थी कि आहार की भाव मिस्टर ए को पसंद थी तो उसको लाइक दिस या वेजिटेबल उसने ये ऑर्डर किया था, टेल गार्डन वो दूसरा उसको ऐसा भी नहीं था कि वेजिटेरियन, दिस वाज द एरर। So therefore, whatever I am suggesting you that all of the research scholars are doing research, you try to become your data is not. For example, t-test, f-test, regression analysis are required in some cases that numerical values ultimately know. If your data is not normally distributed, then you must move towards the non-parametric test. This is what the software uses. And for this, I have just shown you the box plot. There are normal quantile plot tests, which test in JMP software, KS test आपको आपने किया होगा. And there is a Minitab software if you are there, Henderson, Darling test. And there is a very important R package. I have inserted one important software where that is Maldia's multivariate normalization test. जैसे 2 वेरिएट विन ले रहे हैं ना, एक हाइट ले रहे हैं और एक वेट ऑफ स्टूडेंट्स, तो बाईवेरिएट डेटा होगा। हम ये कहते हैं बाईवेरिएट नॉर्मल है या मल्टीवेरिएट नॉर्मल है। हम लोग स्टडीशन भी पूरे वर्ल्ड के ये काम करते हैं कि उन्होंने एक्स हाइट को वही बॉक्स प्लॉट से चेक कर लिया, नॉर्मलिटी वाई की भी चेक कर ली, नॉर्मलिटी से जो है आपने अलग अलग डायमेंशन, बॉक्स प्लॉट इज ओनली फॉर द यूनिट, नॉट फॉर द बाईवेरिएट। In 2021, the first research paper was published that says that by the Bardias, skewness and kurtosis for assessing normality in case of multivariate. So if you are performing multivariate analysis or bivariate analysis, you must कोई दुनिया का सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जो बार्डिया टेस्ट को यूज करता है, एक्सेप्ट I'm sorry to say, I'm in the managing director of SPSS Bangalore में IBM SPSS से मैं खुद हूँ, मेरे पास वो सारी मेंबरशिप है। I am surprised to know that कि IBM SPSS में इतनी त्रुटियां हैं, यदि मैं आपको बता दूं तो आप SPSS सॉफ्टवेयर को यूज नहीं एनालिटिकली जो है वो। तो therefore I am suggesting that whenever you are drafting the multivariate analysis or you will perform the various type of tools जो आपको आने वाले 3-4 दिनों में बताए जाएंगे. This is the very important. He was the first person in our statistics, Sir Francis Galton, who invented correlation and relation. And he tried to measure everything from the weather to the female beauty. कैसे रिलेशन होता है, एंड ही वाज द फादर ऑफ कोरिलेशन और रिग्रेशन या तो मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस की बात है। एंड दिस मैन इज नोन एज एडॉल्फ क्वाड्रेट, हु इज सपोज्ड टू बी नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पूरी दुनिया में
आर.ए. फिशर को फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा, स्टैटिस्टिशियंस भी यही कहते हैं। पूरी दुनिया में जहां भी मैं लेक्चर देता हूँ, मैं इस आदमी को फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहता हूँ। ही इज ए बेल्जियम स्टैटिस्टिशियन। 100 साल पहले इसने वो किताब लिख दी थी। सोशल साइंटिस्ट था, प्रोबेबिलिटी का आदमी था, स्टैटिस्टिशियन था। जो भी हमारे फिशर ने 100 साल बाद दिया, 1834 में ही रूट इन बुक था। इज ए बेल्जियम विजिटर एडॉप्टेड इट। The average man and the emissions of obesity is none. And he suggested on the basis of this normal distribution जो बना रखा है, the weight increases as the square of the height. He developed the relations. So he was very ambitious, and I always say that कि इतिहास के पन्नों में इस आदमी का नाम दब के रह गया। सोशल वर्क या सोशोलॉजी या साइकोलॉजी वाले भी लोग इसको नहीं जानते हैं। इफ यू गो टू द माइंड लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, मैंने इवन आई वन को इसको इनकी बुक में लेकर आया था। तो दिस इज जस्ट आई वांट टू नो, इस लेडी को आप लोग जानते हो? ये तो बचपन से देखा होगा, कोई नहीं जानता, है ना? थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में तो इस लेडी के बारे में इससे ज्यादा बोला जाता है। शी इज नथिंग बट फ्लोरेंस नाइटिंगेल। एंड जो आई डायग्राम हम लोग बनाते हैं ना, इतना परसेंट ये है, सी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार उसने बैटल नॉट में डेथ होने वाला जो डायग्राम बनाया था, दिस डायग्राम इज नोन एज रोज डायग्राम, गुलाब की टुकड़ियों की। और आप ना विश्वास हो तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा, रोज डायग्राम डालिएगा। फर्स्ट एनालिसिस जो है, ये जो यहाँ पे दिखाई है, अप्रैल 1854 ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड देन अक्टूबर नवंबर, 11 महीने का इसने स्टडी किया। एंड शी एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द यूनिवेरिएट, जबकि स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में कहीं पर भी इस लेडी का नाम नहीं किया जाता। राइट, involve a single variable. She explained that in bivariate data we have two variables, where does not deals cause and relationships. अभी cause and relationships के बारे में बात करेंगे। Deals the causes and relationship. The major purpose of univariate data analysis is to describe, whereas in bivariate data she explained that we have to explain. यहाँ क्या करना हो वर्णन करने में, आप भी जो रिसर्च करते हो, यू डू लाइक दिस। एंड देन सेंटर टेंडेंसी बार डायग्राम, ये सब यूनिवेरिएट में आप पूछते हो लाइक दिस। तो देयरफॉर आई ऑलवेज पे रिस्पेक्ट दिस लेडी। इसी वाज द लेडी, इसका जब मैं हेड बना तो डायग्राम हेड के को देखना, दिस इज नोन एज द रोज डायग्राम, जिसने, और वही आज बढ़ते बढ़ते हम लोग पाई चार्ट आप लोग बनाते हो, गोल्ड चार्ट बना के कितना परसेंट है हिंदू है, कास्ट लिखा है। Now, what is multivariate analysis? इसका आप प्रोग्राम अटेंड करने आए। Multivariate statistical techniques when used where there are multiple measurements of each element or concept, the variables are is एक साथ study. These techniques are important in marketing research. Most मॉल पे जब आजकल हम जितने लुलु मॉल के या प्लासियो मॉल के इसका डेटा हमारे पास आता है, आप देखते ना ह्यूज डेटा या बिग डेटा एनालिटिक्स का, आपने सुना होगा बिग डेटा एनालिटिक्स में आई नंबर ऑफ रिसर्च, या अभी भी मैं करता हूँ। अमिताभ बच्चन ने सुबह से उठ के अभी तक क्या किया होगा, we can analyze it like on a seaborne language. Therefore, these are the very. Now there are always two concepts in whenever you are having multivariate data. That is dependence method and interdependence. In dependence method, we have multivariate techniques which are appropriate when one or more of the variables can be identified
as dependent variables and the remaining as the independent. The second concept of multivariate analysis, which we are performing as an interdependence method, multivariate statistical techniques in which set of interdependent, for example, factor analysis आप लोग करते हो, क्लस्टर एनालिसिस करते हो, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग करते हो, या रिग्रेशन एनालिसिस में होगा, या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस जो अभी शुरू में ये बताया जा रहा था कोऑर्डिनेटर के द्वारा ये. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि इंटरडिपेंडेंस टेक्निक्स में कौन कौन सी आते हैं और डिपेंडेंस टेक्निक्स में कौन. एंड फॉर योर कॉन्सेप्ट दिस आई प्रिपेयर्ड ए सिंगल साइट. कोई किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, थंब रूल है, नहीं तो लोग कंफ्यूजन करते हैं. हियर इट इज ए मल्टीवेरिएट डेटा फॉर्मेट. यू जस्ट सी दैट वेरिएबल दिए हुए हैं x1 x2 xt, उस पे डिफरेंट यूनिट्स पे हमने इन वेरिएबल्स को मेजर किया. जैसे फर्स्ट यूनिट में x11 हमारी हाइट हो गई, x12 हमारा वेट हो गया, 13 हमारा चेस्ट सर्कमफ्रेंस हो गया, थाई सर्कमफ्रेंस हो गया, हेड सर्कमफ्रेंस. इस तरीके से एन इंडिविजुअल दिस इज कॉल्ड. ऐसा तो आप रिसर्च करते हो. दो मेथड्स अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किए, डिपेंडेंस मेथड और इंटरडिपेंडेंस मेथड. तो जब डिपेंडेंस मेथड का मतलब ये हुआ कि वन और मोर वेरिएबल्स व्हिच आर कॉल्ड एज हिडन वेरिएबल, they are predicted by a set of independent variables which are called predictor. That is, यही आप भी करते हैं मल्टीवेरिएट. आपको भी जब क्वेश्चन आए, बट तो 30 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन होते हैं आपका स्टडी. If there is only one criterion, ये थंब रूल की स्लाइड है, कोई किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. Then you will have three concepts: correlation and regression, where criterion variable as well as predictor variables are metric and predictor variable are metric and non. Non-metric means जिसको yes no nominal type. मैंने क्वेश्चन आपसे किया, do you smoke? Either you will respond yes, yeah, no, 1 or 0. There is no skill. But if I am asking that how many cigarettes you are consuming per day, so you will tell some number, 9, 10, 20. So that is a some interval type of skill. So in that situation, if there is one criterion relevant, then we will have correlation and regression. Logistic regression, when our criterion variable is non-metric and predictor variable is metric and not. And discriminant analysis of Ryan said last day, introduction में coordinator बता देते हैं. So criterion variable should be non-metric and predictor. And if there are more than 2 or more criterion variables, then we have two types of analysis. One is the canonical analysis, and the second one is multivariate. And in both the situations, in both the type of analysis, we always have metric variables, either in case of criterion variable or in case of predictor. This is the only slide. यदि आप इसको देख रख लेंगे, I will share the PDF of this PPT जो आप कोऑर्डिनेटर शेयर करेगा. कोई किताब या कोई यही कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें डिस्क्रिमिनेंट लगाएं या कैनोनिकल लगाएं या मल्टी वेरिएट. Now you see this example. When I was in England, so I got this picture. क्या जो सहारा मॉल में कोई चीज मिल रही है, उसका प्राइस सेम क्वालिटी का वही रहेगा जो प्लासियो में या किसी अदर मॉल में सिमिलर होगा? या हम ये कहते हैं कि कानपुर यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सेम होंगे? सिमिलर तो होंगे, तो सब लोग कहते हैं. और यही आप लोग भी परफॉर्म करते. एंड परफॉर्म इज दैट व्हाटएवर यू कलेक्ट द डेटा in social science or fundamental science from physiology, physics वाले या social, a single characteristic may not be sufficient. We know it when we see it. Just you see that the hairs of this lady are resembling to this.
क्या इसकी बेसिस पे हम ये कह देंगे both are exactly similar? Same is the situation here, that if you see the eyes of these bonds, oh wrong, exactly matching with this. Is it possible to say that there is a similarity? Not at all. And therefore, we must have interdependence methods. These are the interdependence. Number one is factor analysis, multidimensional scaling, correspondence analysis, cluster analysis. These are the four aspects of interdependence that what measuring. जो आपको एडवांस प्रोग्राम जो ये हो रहा है उसमें आप दे पाएंगे तो बताइए किस तरीके से now what is factor analysis? It is used to summarize information contained in a large number of variables into a smaller number of subsets of factors. Factor analysis लोग पढ़ते रहते हैं पता नहीं क्या कौन सा फैक्टर. The one line definition which I have written. What is the purpose? To simplify that. डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एनालाइज किया जाता है अलग अलग, नॉट टुगेदर फैक्टर एनालिसिस एक साथ नहीं करते. अक्सर इंटरव्यूज में तो लोग एक्सपर्ट्स बैठते हैं तो वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि फैक्टर ऑल वेरिएबल्स बीइंग एग्जामिन्ड आर एनालाइज्ड टुगेदर टू आइडेंटिफाई अंडरलाइंग फैक्टर्स और कंपोनेंट्स. देयरफॉर दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ फैक्टर. व्हाट इज द क्लस्टर एनालिसिस? जो cluster sampling करते हैं, cluster classifies objects into relatively homogeneous groups which are based on a set of variables analyzed, and they identify natural groupings or segment among the many variables which does not include a dependent variable. That is the idea of cluster analysis. तो कब आपको फैक्टर एनालिसिस करनी है अपने डेटा की, कब आपको क्लस्टर एनालिसिस करनी है, these definitions are the basically core of the concepts of the. यही हम लोग हमारे स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स या फैकल्टी, आई सॉरी टू से बट दैट इन इंडिया हम लोग करते हैं एसपीएसएस में लगा कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल, यदि आप जितने लोग बैठे हैं एसपीएसएस के एक कॉलम पे आप हाइट आप सबकी डाल दें और सेकंड कॉलम में हम बेंगलोर सिटी का टेम्परेचर डालते हैं, वो रिलेशन को क्लिक करें विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से एसपीएसएस हम बता दें 0.84 रिलेशन. नाउ इज देयर एनी सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द पार्टिसिपेंट सिटिंग हियर विद द टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर सिटी? लेकिन सॉफ्टवेयर में इस तरीके की बेवकूफियां बहुत और हम लोग खुद ले लेके लैपटॉप भूलते हैं. तो इसलिए whatever I am suggesting that these are the important concepts which you have to learn. Then second one is the correspondence analysis, is a multivariate graphical techniques which are designed to explore the relationship among the categorical variables. अभी पिछले हफ्ते कोई एंथ्रोपोलॉजी की मैडम हमारे पास कि सर इसमें करस्पॉन्डेंस एनालिसिस लगती है. अरे हमने कहा होती क्या है मैडम, आप ये तो बताओ. तो उन्होंने कहा नहीं एसपीएसएस के हमारे सर कह रहे थे कि वो लगा. अरे कहाँ से लगाते हैं? तो देयरफॉर वी मस्ट नो दैट ये अब वेरिएबल उनका कैटेगोरिकल था. इट वाज व्हेन 3 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था एंड इट आल्सो रिड्यूसेस द डैमेज. देन डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस की कोऑर्डिनेटर अभी आप बात कर रहे हैं तो वो भी आपको लास्ट डे से बताया जाएगा. इट्स डिपेंडेंस टेक्निक, not the interdependence, used for predicting group membership on the basis of 2 or more variables. Dependent variable यहाँ ध्यान रखिएगा जब भी आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं नॉन मेट्रिक और कैटेगोरिकल, यानी कि जो आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ा होगा स्केल्स में वो आपका नॉमिनल या ऑर्डिनल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके मैट्रिक इंटरवल और रेशियो में. ये हमारे थंब रूल्स है स्टैटिस्टिक्स के जो आज से 200-300 वर्ष पहले थे, पर यही हम लोग नहीं जानते और सॉफ्टवेयर रन करना था. और ये कह देते हैं कि हम फैक्टर एनालिसिस कर रहे हैं, क्लस्टर एनालिसिस कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट मल्टी लाइक दिस.
So therefore, whatever I'm suggesting that this is the very, this is the most important slide में cause and effect relation. कोरिलेशन निकालने में हम लोग बहुत है ना, आप लोग भी निकालते हो दो वेरिएबल्स के बीच। सबसे पहला काम ये होता है कि इम्पैक्ट देखो इस वेरिएबल का दूसरे। 1960 से 1970 का एक डेटा है, दो डेटा हम आपको एज एन एग्जाम्पल बता रहे हैं स्वीडन कंट्री का। वहां पर स्टोक बर्ड नाम की एक चिड़िया होती है, यहाँ पर भी चिड़ियाघर में आपने देखा होगा ना, लंबे चोंच वाली सारस टाइप की, सारस नहीं होता है लेकिन लंबे उसकी, वो विलुप्त होने लगी कंट्री। जैसे हमारे कंट्री में कोई पक्षी विलुप्त हो रहा है ना, जिसकी रेस हो रही है और सब उसके साथ और हुआ है वल्चर, उसका रीजन क्या है? ऐसे देखिए कॉज बनता है, जो हम आप अपने घर में मिल्क लेते हैं, दूध लेते हैं ना, सवेरे मिल्कमैन आता है, कोई 1 लीटर देता है, कोई 2 लीटर देता है, अब महीने भर में वो मिल्कमैन क्या करता है, सवेरे बफेलो को या काउ को एक इंजेक्शन ऑक्सीटोन का देता है, डेफ्लोनिक इंजेक्शन, और खूब दूध होता है, एक शाम को, और वही मिल्क हम लोग कंज्यूम करते हैं, हमारे यहाँ सप्लाई हो रहा है, हम सभी के हम लोग लेते हैं, और 3 साल तक वो काऊ या बफेलो भैंस जो है वो गाय, मतलब भैंस जो है वो दूध देती रही। तो उसने जो क्या कहते हैं उसको यूज किया, और 3 साल बाद जब दूध देना उसने बंद कर दिया, तो उसने स्लाटर हाउस में बेच दिया। स्लाटर हाउस वाले ने क्या किया, जो उसकी स्किन बोन जो यूजफुल चीज थी वो तो अपने साथ मार्केटिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रख ली, और उसका फ्लैश उठा के यार्ड मतलब ग्राउंड पर डाल दिया, वल्चर ने उसे खाया, वो मार। तो दिस इज, ये कॉज बन रहा है कोरिलेशन। ऐसी कोई स्टडी हम लोग, ऐसे ही एक चीज सबसे ज्यादा हम सब आप यूज कर रहे हैं डेली, उसका इफेक्ट कॉज हम लोगों के ऊपर बॉडी क्या चीज है ना, सबसे डेंजरस टाटा नमक। 1967 पे इंडिया के एक रिवर बेल्ट पर एक प्रकार की बीमारी हुई थी, लोगों का गला फूल जाता था, हिंदी में क्या बोलते हैं, ड्रॉटर। उसको रिड्यूस करने के लिए टाटा कंपनी ने एक नमक बनाया था जिसमें आयोडीन की मात्रा एक्सेस कर दिया। वो 72 में 1972 में कंट्री से बीमारी, स्टिल वी आर कंज्यूमिंग दैट। जब ये रिसर्च मैंने 2002 में करी थी, तब से आई एम नॉट, मेरे घर में कभी भी टाटा का नमक नहीं है, आई एम यूजिंग रॉक सॉल्ट, जो फास्ट अगर हम यूज बोलते हैं, क्या सेंधा नमक। उसका रीजन क्या हो रहा है, टाटा का नाम, अब ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसी है, या टाटा कंपनी है जो बना रही है, वो बिक रहे हैं, खूब सफेद सफेद बढ़िया नमक होता है, रेस्टोरेंट पे हर जगह टाटा साल्ट, या हम भी टाटा का नमक ही बोलते हैं, नमक अब भूल गए, टाटा का नमक बोलते हैं। तो दैट इज, उसकी वजह से हमारी नॉर्थ इंडियन लेडीज को एट द एज ऑफ 40 थायराइड की बीमारी। दिस इज द टाइप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस, और ये चीज जानना बहुत जरूरी है। चेंजेस इन ए यदि होगा तो कॉज चेंज, कॉज करेगा चेंजेस इन बी। ऐसी तरीके से कॉमन रिस्पॉन्स या चेंजेस इन बोथ ए एंड बी आर कॉज्ड बाय चेंजेस इन ए थर्ड वेरिएबल। कोई तीसरा वेरिएबल है जिसमें चेंज होता है। एक और स्टडी हम लोग अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, ड्यूरिंग 1990 से लेके 2000 तक अमेरिकन एम्बेसी में जैसे जैसे नंबर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी के सेनेट मेंबर्स की संख्या बढ़ती गई, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है
दूर में होता ना बाग, आपने स्पॉट्स देखे होंगे या सूरजमुखी कुछ लोग आपने देखे होंगे, वो उनकी मतलब गोरा होना दूसरी बात होती है, वो स्पॉट दूसरे होते हैं। दिस इज द रियल स्टडीज जो वहां के बेवकूफ लोगों ने इस तरीके की, और ये स्टैटिस्टिक्स की किताबों में हम लोग दे आर कॉल्ड स्पूरियस स्कोर। जैसे स्वीडन में एक और कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल्स की डेफिनेशन जब डिफाइन वो करते हैं, तो उन्होंने, जब हम लोग ये अभी आपको एजुकेशन सब करने बताया जाएगा या हम भी बताते हैं उसमें, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट वेरिएबल आप लोगों ने किया होगा। मैनिफेस्ट वेरिएबल जो एक्चुअली ऑब्जर्व, लेकिन लेटेंट वेरिएबल दिखाई नहीं देता है। वर्क एथिक, टैलेंट ऑफ ए मैन, प्रोडक्शन ऑफ ए कंपनी आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसके पीछे जो है, ऐसे ही आई वॉज देयर इन स्वीडन, ठंड बहुत पड़ रही थी, एक वर्कशॉप में गए थे 15 दिन की, -40 डिग्री टेम्परेचर था, तो वहां पर जिस रूम में हम हुए थे, तो गैस का ऑर्डर दिया जाता है, गैस नहीं जल पा रही थी, क्योंकि वो पाइपलाइन से जैसे पीएनजी गैसेज होती है हम लोगों की भट्टी में, तो वैसे वो गैस नहीं आ, तो उसके साथ साथ वो हीटिंग लाइन डिवाइस चलती रहती है। जब बहुत ठंड पड़ती है तो वो क्या कहते हैं, उसको चालू कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो गैस मेल्ट करती है। 5 दिन हो गए थे, आई वॉज लिविंग इन, मैं बगल में, हमारा फ्रेंड जो भी ग्रुप में था, उस ग्रुप से वो वहीं का रहने, मैंने कहा यार 5 दिन से न खा पा रही है, न कुछ कर पा रहे हैं, एकदम मरे जा रहे हैं, -40 टेम्परेचर में, हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, इससे तो हमारी मेरा हिसाब से भी जाड़ा डिक्लेयर नहीं, मतलब as per the definition of government, winter is not declared. यार समझ नहीं पाया, देखो व्हाट डू मीन बाय दिस। अरे यार जाड़ा भाई, अब जैसे टेम्परेचर हुआ तो कोट पहन के आ गए, थोड़ा सा गर्मी होगी तो हम लोग ऐसा करेंगे। वहां पर ये डेफिनेशन है जाड़े की, 7 दिन तक यदि उस सिटी का टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा, तभी वो हीटिंग लाइन शुरू करेंगे, चाहे वो आदमी मर जाए। मेरा भाड़ में गई यार तुम्हारी पैसा। दिस इज कॉल्ड द लैटेंट, how we define it. These are the techniques when you were you conduct the survey or like this. So therefore, confounding changes in P are caused both changes in A and by changes in the. This slide I prepared only for this purpose, cause and effect relations. And you just read the last line. The causation always implies correlation, but correlation does not necessarily. जब कारण होगा कोई, तो हमेशा कोरिलेशन निकलेगा, और कोरिलेशन निकल रहा है, जरूरी नहीं कि कारण। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए जो हमारी स्टडी की लाइफ, दैट इज द मोस्ट, एंड this is just a mathematical portion. When we have two regression lines, y depends on x and x depends on y. We are having two regression lines, one of y on x and one another one x on y. And the equations of lines are like this. When x is independent variable, y is dependent variable, and here in x, y is independent and x. And the correlation coefficient is the geometric mean of this regression coefficient b by x. I am just showing here. There is no need to write this, but this is the backup of statistics in the software, the syntax of. This most important. You are very well familiar. You try to find out the R square. आप लोग पढ़ते होंगे और हर जगह यही पढ़ते हो. What is R square? The line is this. Y is equal to a plus b by x is the line. This is our independent variable x1, x2, x1. Dependent variable is y1, y2, yn, and the estimated value through these lines is given. So what is the R square? That is nothing but the covariance
between the estimated values with this dependent variable. And what it measures? It measures the explanation of variation. टोटल वेरिएशन जो डेटा के अंदर आता है उस वेरिएशन का कितना पार्ट एक्सप्लेन कर, दैट इज द हियर। इस आर स्क्वायर का मतलब अधिकतर लोग ये लगाते हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर इज नॉट एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल, यदि हमने एक डेटा लिया, उस डेटा में मैंने कैलकुलेट किया, आर की वैल्यू 0.6 आई, इन्होंने मैडम बैठी है, इन्होंने डिपार्टमेंट दूसरा सैंपल ले लिया, इनकी वैल्यू आर की वैल्यू 0.3 है। तो बट नेचुरल हमारे स्टूडेंट से बोलेंगे कि सर का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है मैडम की वही वेरिएबल सेम है, उसका ट्वाइस हुआ, लेकिन दोनों का अंतर कैसे? स्क्वायर कर दीजिए। स्मॉल 0.6 का स्क्वायर किया 36 आया, और 0.3 का जब स्क्वायर किया तो 9। This implies that in the first case 36% of the total variation is explained. डेटा के अंदर जो वेरिएबिलिटी है उसका 36% है, while in the case second case only 9% of the total variation. इसलिए हमेशा याद रखिए कि आर स्क्वायर इज नॉट द स्क्वायर ऑफ द कोरिलेशन। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज या आईएएस पीसीएस में मैं इंटरव्यू बोर्ड में बैठता हूँ तो पहला क्वेश्चन ही यही मैं पूछता, व्हाट इज आर स्क्वायर? वो कहते हैं स्क्वायर ऑफ द कोरिलेशन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इन केस ऑफ फाइनाइट। इफ यू आर attending this multivariate data analysis faculty development program, you must know that this is not. For your study, I have taken that data of 8 zones of corresponding FIRs of murder. पुलिस का डेटा आपको समझाने के लिए तो हमने एनालाइज किया, ये एस्पेक्ट्स पे तो अभी और तरीके का डेटा किया जाएगा। देयर आर 8 जोन्स, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी। And in June, these are the FIR on 1536 police stations of Uttar Pradesh with various zones. Murder or FIR and then the category. These are some calculations which I did, and therefore after calculating this, the covariance the correlation coefficient small r comes out to be 0.76, which I have computed as here regression. इससे हम आपको समझाने के लिए बता रही हैं। There are two regression lines. One is y on x, regression of murder on Dakati. The other one is a regression of x on y, that is Dakati. अब ये पुलिस वाले इस मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स से क्या समझिए नहीं, मैथमेटिकली तो हमने बना दिया। अब आप ये देखिए, इस डी बाई एक्स की वैल्यू कितनी है? 1.6। एक्स इज डकैती और वाई इज मर्डर। तो आईपीएस ऑफिसर मुझसे पूछता है एसपी सर इसका मतलब क्या? मैं ये कहूंगा कि पुलिस स्टेशन पे यदि डकैती की सूचना मिली है कि फलानी जगह पे डकैती पड़ गई है, यही तो होता ना, कॉल आया, इसकी टीम दौड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स। तो उस समय आपको वो एक्सपर्ट भी अपने साथ रखने हैं कि आप मर्डर होने जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स। While in the vice versa case, if ये पता चला कि फलानी जगह मर्डर हो गया है, in that situation the regression comes out to be 0.36। तो उसमें इसका मतलब है कि मर्डर यदि वहां हुआ है, खबर आई है, वहां पर डकैती नहीं। तो डकैती वाले एक्सपर्ट से या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर जो भी होते हैं, इस तरीके से हम लोग यही चीज आप भी रिग्रेशन एनालिसिस पे करते हैं। There is another concept of rank correlation. Psychology discipline के कोई लोग हैं, you might have used Spearman rank correlation coefficients. If you work out the Pearson correlation coefficient 0.76 r, then and work out the
39 एज स्क्वायरमैन रैंक। इसके पहले वाली स्लाइड में उसका फॉर्मूला हमने बताया, फॉर्मूले को देख लीजिए। They on the basis of actually when you compute the Spearman rank correlation and product moment calculation correlation, their signs are always of the same nature. यदि एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव है तो दूसरा, लेकिन always the Spearman rank correlation is always less than the value of this Pearson correlation. हमेशा कैलकुलेट करेंगे आप, क्योंकि रैंक देखिए आप there is a statistical formula, do you know? आप लोगों ने पढ़ा हो ये एग्जैक्टली साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स आपको पीछे बताया। there is a book of Garrett, देखिए नहीं देखी? there is a formula that is called correction factor 1 upon n minus 1 upon 1 upon n square minus 1. If you use that formula in and add in the Spearman rank correlation, that will exactly become the this correlation. अक्सर ये क्वेश्चन हम लोग डेटा एनालिसिस में पूछते हैं जब उनके रैंक से आपने कर रखा है तो इसका एग्जैक्ट कोरिलेशन कितना आएगा, व्हाट विल यू डू, नोबडी नोस। इवन एसपीएसएस बनाने वाले लोगों से मैंने पूछा, therefore this is the very important case. Now I am just telling that what is the regression analysis और स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस जो आपको इससे आगे होने वाले 5-6 दिनों में बताया जाएगा। कॉमन टाइप्स ऑफ एनालिसिस, यू हैव टू कंपेयर द ग्रुप्स, यही तो करते हैं आप। ये एक ग्रुप आपने ये लिया, मेल फीमेल, एक इलाहाबाद एक कानपुर, लाइक दिस। एग्जामिन द स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप्स, उनका रिलेशनशिप है। तो कंपेयर प्रोपोर्शंस, जैसे अभी मैडम डीन हमारी ये बता रही थी कि डिपार्टमेंट में पहले फीमेल बहुत कम थे, अब फीमेल, तो ये कंपैरिजन हुआ ना उस समय और आज के समय में, क्या प्रोपोर्शन क्या करता है। कंपेयर मींस कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, इन डिस्ट्रिक्ट्स में शुगर का एवरेज प्राइस क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपैरिजन कर रहे हैं। एनोवा जिसे आप लोग बोलते हो, लेकिन ध्यान रहे कि एनोवा या रिग्रेशन एनालिसिस कराने के पहले आपको क्या टेस्ट करना पड़ेगा। आज की यही एक बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि यदि आप नॉर्मलिटी टेस्ट करें, नहीं तो होता क्या है, हमने डेटा उठाया और लगाया और रन किया, कम से कम नॉर्मलिटी टेस्ट करें। बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट, बाईवेरिएट की इक्वेशन ये वही, मल्टीवेरिएट की इक्वेशन आपके रिग्रेशन एनालिसिस है। Now my question is that, या आप मुझसे ये क्वेश्चन करोगे, what does regression analysis do and regression analysis actually करती क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। It examines whether the changes or differences in values of one variable, जो dependent variable है, are linked to the changes, जो अभी cause and effect relationship हमने बताया ना, एक वेरिएबल में जो चेंजेस हो रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसका चेंज घटना बढ़ना से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट हो रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्शन एक्टिव, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप बिटवीन एरिया क्राइम रेट एंड पुलिस पर्सनल्स, कि उस थाने में कितने पर्सनल इंस्पेक्टर्स लगे हुए हैं, X1, एंड जेंडर, मेल या फीमेल जेंडर। लखनऊ यूनिवर्सिटी का पुलिस स्टेशन है यहाँ, तो उसमें कितने इंस्पेक्टर मेल है, कितने फीमेल है, उससे हम एरिया क्राइम रेट का रिलेशन निकाल लें। तो नंबर ऑफ फीमेल्स या नंबर ऑफ जेंडर बढ़ाएंगे तो क्या मेल बढ़ाने पे एरिया क्राइम रेट कंट्रोल होगा, या फीमेल बढ़ाने पे, या नंबर बढ़ाने पे, नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स बढ़ाने पे, लाइक दिस। तो वी हियर वी नो दैट डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो मस्ट बी मेल, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारा इट मस्ट बी मैट्रिक मेल फीमेल, मतलब नॉमिनल स्केल यूज। कैजुअल क्वेश्चन हमारा क्या है,
या सेंट्रल क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हैं, is why means there is a function of area crime rate is a function of x1 that is the police state personals and x2 the gender के बीच में कोई संबंध है नहीं। यदि संबंध है तो कैसे है? Is there a relationship between y and x1 and x2 है after controlling the effects of all other सीन क्या है क्राइम रेट्स का? जैसे आप बहुत सारे हमने स्टडी कर रखी है क्रिमिनल जी पे कि जहां पर आपको जानकर ताजुब होगा कि लखनऊ सिटी के अंदर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जहां एफ्लुएंट लोग रहते हैं या एजुकेटेड लोग रहते हैं, वहां पे क्राइम सीन ज्यादा है। हम क्राइम की बात नहीं कर रहे कि व्हाट टाइप ऑफ क्राइम, मर्डर है, रेप मर्डर है, लेकिन जो फिगर्स मैंने देखी वो एजुकेशन है, हाई प्रोफाइल सोसाइटी में ज्यादा है इंस्टेड ऑफ पॉवर्टी। उसका रीजन क्या है? एफ्लुएंट लोग रहते हैं, गोली चला देंगे मर जाएगा, जो कि कहते हैं एक्सपांजेड, बच तो लेंगे। लाइक गोमती नगर, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग अ पर्टिकुलर एरिया, बट दिस टाइप ऑफ सीन्स आर, या जो केन शुगर फील्ड्स है, लाइक मैन में नंबर ऑफ रेप। तो इन दैट सिचुएशन this type of regression analysis we can have. Now, two values of y, that is dependent variable, tend to increase or decrease as the values of x1 and x2. ये यदि x1 x2 को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो क्या इस पे असर पड़ेगा या कोई बढ़ेगा? यदि ऐसा है तो रिग्रेशन एनालिसिस ये बता देती है if so how much and how strong the connection or relationship between x and y. Or if there is such a what percent difference variation in y values area crime rate, just try to study years of services क्या है of their present postings. Once we can determine how values of y, that is the dependent variable, changes as a function of x1 x2, तो इसका मतलब क्या है कि we will be able to predict or estimate the value of dependent variable on the basis of the information of x1 x2। या गेहूं का उत्पादन 2025 मार्च में उत्तर प्रदेश में कितना होगा, यही तो हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट क्रॉप का कितना होगा डिपेंड करेगा कितना खेत में ग्रोइंग करा है, कितने वाटर रिसोर्सेज दिए हैं, फर्टिलिटी ग्रेडियंट हमने क्या रखा, मैन्योर्स कैसा डाला है, और these are the different independent variables. So therefore, regression analysis in a sense is about estimating values of this. Dependent variable होता है उसका estimate। आप लोग इतने लोग पढ़ने आए तो इस प्रोग्राम का की सफलता किस बात पे डिपेंड करेगी कि आपने कितना समझा। हम तो बोल दिए 3 घंटे यहाँ पर या अगले स्पीकर्स बोल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को कितना गेन। कुछ लोग तो खाली आए होंगे कि यार एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो नौकरी पा जाएंगे, या नौकरी में कुछ प्रमोशन वगैरह मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली नॉलेज आपकी बढ़ रही है कि नहीं? दैट इज द आवर पर्पस ऑफ माय डिपार्टमेंट। यदि एस्टिमेशन है तो क्या हुआ, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव होगा। इसलिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को ऐसे डिजाइन किया, जब पास ने या और किसी मसूद ने पूछा मुझसे, मैंने कहा कि ये टॉपिक्स आपको एडवांस, मैं शुरू में कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊंगा, फिर आप सॉफ्टवेयर में बताइएगा एनालाइज टू मिनिमाइज एरर इन एस्टिमेशन। आपकी नॉलेज में जो इजाफा होगा 5 या 6 डेज, उसमें एरर कम से कम, ऐसा ना हो कि मैं जो बात बता रहा हूँ वो अगला स्पीकर नेक्स्ट डे जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे आपस में मतलब ये नहीं कि थ्योरीज तो कोई हम लोगों की एक ही रहेगी, लेकिन ये है कि वो वेरिएशन कम से और टू कंप्यूट एस्टिमेट दैट आर क्लोज टू द ट्रू और एक्चुअल वैल्यूज एज पॉसिबल, कि आपकी नॉलेज और इससे
व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू ऑब्टेन एन एस्टिमेट? अब प्रश्न ये आता है, जब खाली लेक्चर देके थोड़ी हो पाएगा, क्योंकि आज मैं जितनी बात अभी बता रहा हूँ, अभी आप जब जाओगे भूल जाओगे, होगा कि नहीं? इतनी 3 घंटे की बात या 1.5 घंटे की बात तो याद नहीं रहेगी। तो आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से सीखेगा, स्पेसेस पे आप करके इतना कम से कम 5 दिन में सीख जाओ क्या पे। Therefore, that is the तो आंसर इज दैट वी हैव टू सेलेक्ट a representative। आप लोगों का सिलेक्शन किया, सिलेक्शन मींस दैट यू अप्लाइड और आपका पॉपुलेशन किया, कंप्यूट द मीन ऑफ द सैंपल, फिर एट द एंड माय प्रपोजल वाज दैट कि आपका भी एक टेस्ट होना चाहिए, 5 या 6 दिन में क्या सीखा आप। देयर मस्ट बी अक्सर रद्दी जितनी होती है, सब पार्टिसिपेंट्स का एक एवल्यूएशन होता है सर्टिफिकेट लेके पहले 2 घंटे का उसी टॉपिक्स पे तो हम लोग लेते हैं। So regression analysis can be viewed as a technique that often significantly involves. So suppose we are यहाँ पे 8 जोन्स थे, A1 to 8 FIR मर्डर की हमने ये रिकॉर्ड कर रखी थी, ये ले आए तो एस्टिमेट इसका क्या बनेगा, वही एवरेज निकाल दिया, एवरेज हमारा ये आ गया, टोटल 11,761 का 8 से डिवाइड कर दिया, दैट इज द। अब देखिए एस्टिमेशन ऑफ एरर, हमारी एवरेज वैल्यू आई थी 1470.125 और एक्चुअल जोन्स की वैल्यू ये थी, तो डेविएशन आ गया, अंतर आ गया, तो किसी का ज्यादा ज्ञान मिल जाएगा, किसी को कम ज्ञान मिलेगा। जब हम आपका टेस्ट लेंगे, कोई 90% सिक्योर करेगा, कोई लेस देन 30% भी करेगा। आई एम जस्ट टेलिंग, मतलब दिस इज द सिचुएशन दैट देयर इज एन एरर इन एस्टिमेशन, और जब एस्टिमेशन में एरर आएगी तो लेट्स नाउ सी ग्राफिकल, इसका ग्राफ हमने बनाने की कोशिश की। एस्टिमेटेड लाइन तो ये है, हम इतना आप लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि आप लोग इतना लर्न करके जाओगे या इतना एफआईआर होगा, लेकिन जो फर्स्ट जोन है Z1 उसमें ये एरर आ, इसकी एक्चुअल वैल्यू ये है। These are called the estimation. My question is that can we determine the total estimation error for पुलिस स्टेशन का, ऑटो जोन्स का, जो क्या कहते हैं हम, टोटल कितना होगा, तो ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं इसको जोड़ दें। तो हमने क्या किया, ये टेबल बनाई, एरर एस्टिमेशन किया, टोटल किया, yi माइनस वाई वन, टोटल एरर 0 क्यों हो गई, सम आर पॉजिटिव सम आर नेगेटिव, तो टोटल ये स्टैटिस्टिक्स में हम लोग बताते हैं, सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन व्हिच इज ऑलवेज, therefore it comes, what I can do that we square this, स्क्वायर कर दिया तो दैट इज कॉल्ड द सम ऑफ टोटल स्क्वायर्स, इस टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स स्क्वायर करके जो टोटल किया दैट इज कॉल्ड SST for 8 jones. This SST is also a sum of squares of deviation from their mean. Remember the formula for computing variance को ध्यान रखिएगा, जिसका ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि एरर को मिनिमाइज करना है जिससे कि मैक्सिमाइज प्रेसिजन। Can we cut down the amount of estimation error? क्या ये जो इतनी बड़ी एरर आई है 12,59,505, इसको कम कर सकते हैं? यस, हमने एक दूसरा वेरिएबल ले लिया, डकैती। जब डकैती का वेरिएबल लिया, लेट्स फर्स्ट सी नंबर ऑफ डकैती एक्स एक्सिस पे ले लिया और वाई को हमने, तो y इक्वल टू mx प्लस c लाइन बना रहे, दिस इज आवर एस्टिमेटेड, दैट्स राइट। Thus, the mean by what जो ये लाइन जा रही है appear to represent the closest estimate of the actual FIR जो रिपोर्ट करी गई है, और our number of डकैती से रिलेटेड है क्या, जो नम देखते हैं जरा, किसी ने बताया नहीं, जनरेट इक्वेशन ये भाई हमारे स्टूडेंट हैं, तमाम स्टूडेंट आप लोगों में से वाई डेटा दिया हुआ है नंबर ऑफ डकैतीज का, और एक्स का, तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस bx की लाइन बना दी।
दूसरे स्टूडेंट को दिया तो उसने ये लाइन बना दी, A2 प्लस B2X। किसी तीसरे स्टूडेंट को डिपार्टमेंट में दिया तो वो तीसरी इक्वेशन बन गई। और क्वेश्चन ये उठता है कि यदि हम ऐसे स्टूडेंट्स को दे देंगे अपने रिजल्ट, नंबर ऑफ इक्वेशंस है विच इज सपोज टू बी द बेस्ट, इसमें से बेस्ट कौन हो? तो ये ए वाला कहेगा मेरी बेस्ट है, बी वाला कहेगा मेरी बेस्ट है, तो दैट इज द बेस्ट इक्वेशन विच इज कॉल्ड रिग्रेशन लाइन। हाउ वी विल फाइंड दिस रिग्रेशन लाइन? दिस इज वाई इक्वल टू the points. Regression line minimizes the sum of square y minus y hat total estimation. So therefore, this y hat is equal to a plus bx was the regression line. A can and b can be computed from this. Mathematically, I have computed a and b on the basis of these calculations. मर्डर का y वैल्यू दे रखी है, x वैल्यू दे रखी है, इनफैक्ट x का x से डेविएशन दिया, y का y से डेविएशन दिया, क्रॉस प्रोडक्ट टर्म, क्योंकि ये चीजें हमको चाहिए। तो जब इसको हमने कैलकुलेट किया मैनुअली, तो इट कम्स आउट। यही तो करना है हमें, यदि मैथमेटिक्स के हिसाब से चले, यही सॉफ्टवेयर में अंदर प्रोसेस होता जाता है कि जैसे ही आप दबाते तुरंत वो रिग्रेशन लाइन बन किया जाता एंड ए एंड बी की वैल्यू वर्कआउट कैलकुलेट कर दिया, उस रिग्रेशन इक्वेशन में a is equal to this, b is equal to this here. What is this? This is nothing but known as intercept, and this is known as regression. Continuing, this was our y-intercept, and the factor related with the associated with x is the regression coefficient. And this regression 1.61, if you remember, that was in exactly by murder or डकैती वाले जब regression line. So therefore, I have plotted this line, blue line on this. This is the best line. ये point है. Now, question is that can we tell how much estimation error we have committed by using this new regression line? तो जरा से आप इसको देखिए, ये हमारी लाइन थी, इसमें ये डकैती की फिगर्स थी, इनको जब हमने यहाँ पे रखा तो इस एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन से ये जब हमने इसको वर्कआउट किया तो ये आ गया। प्रयोग करने पे डेविएशंस लिए, डेविएशंस का स्क्वायर कर दिया, सम कर दिया, तो सम आ गया 51। दिस our statistic we call it sum of square due to errors, the residual sum of square. क्वेश्चन ये है, टोटल बेसलाइन एरर हमारा कितना था? 12 लाख कितने के? जब तो एक वेरिएबल को हमने ऐड कर दिया तब हमारा एरर कितना हो गया? 5 लाख करीब उतना हो गया। इतना हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल एस्टिमेशन एरर हैव वी एक्सप्लेन्ड, कितना एक्सप्लेन कर ले गए, तो उसको हमने उससे सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज 7। क्वेश्चन ये आ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ एस्टिमेशन एरर वी हैव एक्सप्लेन्ड नाउ बाय दिस मॉडल, जो मॉडल अभी हमने बनाया, इसको डिवाइड कर दिया, दैट इज 0.591 और 60%। इस 60% को कहेंगे क्या, कोई बता सकता है? अरे डोर बंद कर दीजिए ये। Anyone can tell what is this 60%? Yeah, it is nothing but a coefficient of determination, R square. Now, I have explained the total variation in the data in terms of 60%. लेकिन अभी 40% एरर पार्ट है उसके अंदर, इसको कैसे करेंगे? तो ये जब I was doing this real data analysis in police office या उनके, तो हमने पुलिस आईपीएस ऑफिसर ने कहा कि पांडे सर क्या इस 40% को और कम नहीं कर सकते आप? मैंने कहा यस आई कैन। हमने कहा कैन यू प्रोवाइड मी अनदर टाइप ऑफ क्राइम? भाई पहले एफआईआर मर्डर का था,
एफआईआर थी, उन्होंने साइमल्टेनियसली डकैती की थी। तब उन्होंने कहा कि सर हमारे पास उसी पुलिस स्टेशन के रेप का भी डेटा है हमारे पास। वो हम ये आर स्क्वायर का थोड़ा हमने, ये हमारी रिग्रेशन लाइन आई। तो न्यू एरर जो हमारी आ गई, जो डिफरेंस हमने 40% आ रहा है, वो 60% तो एक्सप्लेन कर ले गए, लेकिन ये 40%। न्यू एरर अनएक्सप्लेन्ड एरर जो है, वो एक्सप्लेन्ड एरर बाय द रिग्रेशन मॉडल ऊपर वाली हो गई, रेड लाइन को ग्राफिकली। कैन बी रिड्यूस, जो क्वेश्चन अभी मैंने पहले बोल दिया, द अमाउंट ऑफ एस्टिमेशन एरर टू एन इवन लोअर 40% से भी कम कर सकते हैं। मैंने कहा यस यस। My response was by adding information on a second variable suspected to strongly related, जो मर्डर से रिलेटेड जो क्राइम होता होगा भैया उसका डेटा होगा। तो उन लोगों ने प्रोवाइड किया नंबर ऑफ रेप केसेस ऑन दैट। ठीक है, एफआईआर हमारे पास मर्डर की थी, जब पहला को रिलेटेड वेरिएबल दिया तो नंबर ऑफ डकैती दिया। तो ये हमारा जेनरिक इक्वेशंस बन गई, B1 X1 B2 X2, दो वेरिएबल्स दिए जिसका इफेक्ट एक तीसरे वेरिएबल पे पड़ता है। इसको हमने आपको समझाने के लिए आज से आज रात को कल स्लाइड बनाया था कि किस तरीके से वी कैन एक्स नंबर ऑफ रेप केसेस द नंबर ऑफ मर्डर। ये 3D, इससे ज्यादा तो हम नहीं बना सकते क्योंकि हम लोग कोई नहीं बना सकता। ये जेनरिक इक्वेशंस बनी, ऊपर जो लिखी हुई है X1 और X2 क्या, नंबर ऑफ डकैती, नंबर ऑफ रेप केसेस, रिग्रेशन एस्टिमेट्स बनाए, फिर ये आया, फिर एरर सम ऑफ स्क्वायर्स आए, इसको टोटल किया, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स, वही रेजिड्यूल था। एक वेरिएबल और ऐड होने से क्या इफेक्ट आया, ये रिग्रेशन इक्वेशन बन गई। दो वेरिएबल्स हमारे साथ हो गए X1 X2। दिस इज इंटरसेप्ट और B1 एंड B2 0.76 का मतलब ये है, among zones an increase in the number of डकैती by 1 unit on an average it will result 0.76 more murder offenders। while रेप के केसेस में हम देख रहे हैं, यदि नंबर ऑफ रेप केसेस में देखें तो 0.013 यदि करते हैं जाके मर्डर का केस में एक आता। तो कौन ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है, कहती जहां पड़ती है वहां पे मर्डर होने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। दिस इज व्हाट इज आवर न्यू आर स्क्वायर, वही कैलकुलेट कर लिया तो दैट कम्स आउट टू बी आर स्क्वायर 64%। उन्होंने क्वेश्चन हमसे कर दिया, अभी भी 36% बचा है सर, इसको भी क्या और रिड्यूस कर सकते हैं? यही आप लोग भी करते हो सोशल साइंस में, वेरिएबल ऐड करते चले जाते हो, या भी आपको एक्सरसाइज करके लोग बताएंगे। मैंने कहा यस। तो नंबर ऑफ लूट केसेस, हमें क्राइम किस प्रकार का है एज ए स्टडीशन, आई एम नॉट कंसर्न कि रेप है, मर्डर है, लूट है, डकैती है, लेकिन डेटा आपके पास किस प्रकार का है वो आप। उन्होंने कहा सर हम उन पुलिस स्टेशन में उस ड्यूरेशन में जो लूट के केसेस हुई है उनसे का डेटा दे सकते, तो दे प्रोवाइडेड अस एक्स। तो फिर हमारी जेनरिक इक्वेशन ये बन गई, मैथमेटिकली ये सब कैलकुलेशन करके सॉफ्टवेयर में विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपको अभी एमएलआर बताया जाएगा। व्हाट इज आवर न्यू आर स्क्वायर, 64 से 75% हम कंप्यूट कर लेंगे। दिस इज फिर क्वेश्चन आया 25%, अभी भी फिर कोई आप वेरिएबल दे दो हमें। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जोड़ते चले जाएंगे, हमारा आर स्क्वायर का एक्सप्लेनेशन होता जाएगा और टोटल वेरिएशन इन द डेटा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस एंड मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन। बाईवेरिएट से कैसे हम फिर वही रिस्पॉन्स ऑफ परसेंट ऑफ वेरिएशन किस तरीके से बनो, एंड दिस इज रिमेनिंग। So this is the way that how we study the multivariate data analysis। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दिए,
और किस तरीके से मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स. And I am sharing this slide for which Government of India. I prepared this slide in 39 years. 39 साल लगे मुझे इस स्लाइड को बनाने में, 2 स्लाइड से. फॉर विच इस स्लाइड को यदि आप डीएससीजी की वेबसाइट में दिया हुआ है तो फर्स्ट पेज में, यदि आप इस स्लाइड को अपने पास रखेंगे तो किसी स्टैटिस्टिशियन या किसी किताब स्टैटिस्टिक्स की देखने की जरूरत नहीं. आप लोग यही तो करते हो, कंपैरिजन ऑफ टू ग्रुप्स, जो आप अभी बात कर रहे थे साइकोलॉजी की, या कंपैरिजन ऑफ 3 ग्रुप्स, तो आप उसमें कैटेगराइज करो. यदि अनपेयर्ड ग्रुप है या 2 ग्रुप्स को मान लिया, मेल और फीमेल का, हम अपने स्टूडेंट्स का स्टडी कर रहे हैं, इफ इट इज अनपेयर्ड तो रेशियो इंटरवल होगा या ऑर्डिनल स्केल पे होगा या नॉट होगा. यदि वो रेशियो इंटरवल है तो उसकी नॉर्मलिटी चेक कर लीजिए आप, जो बात अभी आप कह रही थी. इफ एन मीन्स नॉर्मलिटी है, नीचे स्लाइड पर चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनपेयर्ड टी टेस्ट लगेगा. क्लियर? नॉट एनएनडी मीन्स नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मैन विटनी टेस्ट लगेगा. आंख बंद करके आपको कोई दूसरा है. यदि ऑर्डिनल है तब भी मैन विटनी लगेगा, लेकिन यदि नॉमिनल टेस्ट है तो फिशर टेस्ट लगाएगा. इसके अलावा वर्ल्ड में कोई स्टैटिस्टिक्स. मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन 2 ग्रुप्स आप लोग बहुत, जस्ट आप देखिए यहां से आए, इफ योर डेटा इज इन द रेशियो इंटरवल स्केल तो आप चेक करिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉट नॉर्मली. यदि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पियर्सन को रिलेशन निकालेंगे, ऑर्डिनल है तो पियर्सन को रिलेशन निकालेंगे, नॉमिनल है तो कंटीजेंसी कोएफिशिएंट्स निकालेंगे. एंड दिस स्लाइड आपके डीएससीजी के फ्रंट पेज में दी हुई है. सही, आप लोग जब करते हैं वैसे बस है. दोनों स्लाइड्स को बनाने में आई टुक 39 years and Government of India awarded me as a data scientist, and I prepared the group of data science in DSCG in 2017. This your outcome variable is continuous. You are having paired test. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो पेयर टी टेस्ट लगाएंगे. यदि आपका नॉट नॉर्मल होगा, जो आप बात कर रहे थे, तो कौन सा होगा? विल्कोक्सन साइन दैट. Yeah. Similarly, if in outcome variables are categorical, if it is 2 groups, chi-square test, Fisher test, logistic regression paired है तो मैकमिनस टेस्ट या कप्पा स्टैटिस्टिक्स लगा देंगे. इसके अलावा सॉफ्टवेयर आपके पास है, ये 2 स्लाइड आपके पास है, ये में रखे रहिए, जहां मन हुआ डेटा डालिए, टेस्ट करिए, आपका रेडीमेड बर्गर तैयार है ना. लेकिन I took how much? And this is one of the important book which I want to share. पूरे वर्ल्ड में इससे बढ़िया किताब मुझे नहीं मिली. मल्टीवेरिएट, ये नोवेल की तरह है किताब, कोई स्टैटिस्टिक्स इसमें नहीं. आप देखिए, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, करस्पॉन्ड, जो कुछ भी है मल्टी डायमेंशन है, ये जिस आपका है, दिस बुक इज द बेस्ट बुक. इसको यू कैन कैरी, आप पीडीएफ भी ले सकते हैं इसका, you can download it. And this book की multi-dimensional scaling क्या है, whatever the topics that will be covered here in subsequent lectures, उसका सारा कॉन्सेप्ट है. आप ट्रेन से जा रहे हो, टैक्सी से जा रहे हो या बस से ट्रेवल कर रहे हो, नकली सी किताब, कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है. So that's why I am sharing this book. That is also very important. And you can download PDF. अब तो आप लोग मोबाइल पे पढ़ने वाले हो, मोबाइल पे यू कैन रीड इट. तो कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताए सारे के, कि करेस्पॉन्डेंस एनालिसिस क्या है, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस क्या है, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग क्या है,
फैक्टर एनालिसिस क्या है, क्लस्टर एनालिसिस क्या है, दोनों बेसिक अंतर क्या है। और अब इन्हीं के हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा, और सर भी बहुत एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट स्पेसेस। तो थैंक यू फ्रॉम माय